اور ہمارے اور ان کا سیاسی اتحاد کافی وقت سے ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو مرکزی رہنما ہے مولانا محمد خان شیرانی صاحب، ان کے بقول یہ اتحاد تا حیات اور زندگی جاری رہیں گے۔ وقتی طور پر جو مسئلے آتے ہیں اور ان مسئلوں پر ہمارے آپس میں کبھی اتفاق ہوتا ہے کبھی اتفاق نہیں ہوتے، وہ وقتی طور ہوتے ہیں۔ لہذا الیکشن میں بھی رابطہ جمعیت علماء اسلام نے اکثر حلقوں میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو سپورٹ کیا ہے، اور میں خود بھی ایک حلقے سے الیکشن میں کھڑا تھا، لیکن تحریک انصاف کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہوا۔ ابھی اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہے، وہ مسائل جو ہے وہ لاقانونیت کا ہے، وہ مسائل امن و امان کے ہے، وہ مسائل اقتصادی مشکلات کے ہے۔ اس میں ہمارا سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے، اور سب سے زیادہ کوشش جو اس وقت ضروری ہے اور اہمیت ضروری ہے وہ سیاسی استحکام ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ انتخابات پر اور اس نظام پر اعتماد پیدا کیا جائے، اور اس اعتماد کے لیے جو کمزوریاں ہوئی ہے ان کمزوریوں کو نکالنے کے لیے ہم مقتدر لوگوں سے اور مقتدر شخصیات سے اور سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کریں گے، اتحاد بھی کریں گے، اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں۔ میں اس موقع پر تحریک انصاف کے اس انتہائی باعزت وفد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے حالات میں رابطہ جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں لیا اور آگے سفر کے لیے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، ہمارا اور مولانا صاحب کا اور شیرانی گروپ کا انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد قائم اور دائم رہے گا۔ مولانا صاحب نے ٹف سچویشن میں ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، انہیں 7 سے الیکشن لڑ رہے تھے، ہمارے ریکویسٹ پہ یہ دستبردار ہو گئے تھے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا۔ ہم الیکشن سے پہلے بھی رابطوں میں تھے، آج بھی ہم ان کی طرف آئے، اس کا ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، اور دونوں نے یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے رابطے ہم جاری رکھیں گے، اور ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، یہ جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، پارلیمان کے لیے جمہوریت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور ملک کی اکانومی کو اور یہ حالات درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو ریگنگ ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے، جو ہم سارے سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا مینڈیٹ ریسٹور ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی تدارک کیا جائے، فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوع نہ ہو۔ اس پہ بھی ہم نے اتفاق کیا ہوا کہ ہم اکٹھا اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ تعالی اور جاری ساری رکھیں گے اس کو۔ اسد کیسر صاحب اگر کچھ اسپیکر صاحب۔ میں صرف اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں جس کی اس الیکشن کے اوپر کنسرن ہے، جس کی ریزرویشن ہے اس کے اوپر، اور اس وقت یہ الیکشن جو ہے نا پہلا الیکشن ہے کہ اتنا بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں جو ہے نا پوری بلوچستان احتجاج پہ ہے، سندھ میں بہت بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں اور KPK میں خاص کر جو ہمارے پشاور میں جو سیٹیں چنی گئی ہے، کراچی میں یا لاہور میں، اور جو کمشنر راولپنڈی نے جو انکشافات کیے ہیں، اس کے بعد تو یہ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کتنی بڑی ریگنگ ہو گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ بالکل سمپل ہے، فارم 45 جو کہ ایک قانونی ڈاکومنٹس ہیں جس کے بارے میں جو کہ ان حکومت کے اپنی ایک پروسیجر اس کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہے، جس کا مینڈیٹ ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، اس کو مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، اور میں چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا اور ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو کمشنر نے الزامات لگائے ہیں یا انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم
प्रोग्राम बना रहे हैं। महमूद खान अशरफ की मेरी बात हुई है और GDA के साथ भी हमने राबिता किया है। इंशाल्लाह कराची भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे। हम किसी भी सूरत में ये किसी को इख्तियार नहीं देती कि वो बंद कमरों में फैसले करे। ये फैसले आइन और कानून ये अवाम को देती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अवाम की। जिसको वो मैंडेट दे उसी का इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। उमर यूब साहब जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ओहदे के लिए नामजद वज़ीर आज़म के लिए जो हमारा कैंडिडेट है, हम सबसे बड़ी पार्टी PTI है इस वक्त। उस रशद साहब ने एक्सप्लेन किया कि तकरीबन 180 से ज़्यादा हमारी सीटें हैं। हमसे हमारा निशान छीना गया। जो हमारी रिजर्व सीटें हैं उसके लिए जो है ना एक मनसूबबंदी के तहत हमसे निशान छीना गया। 2/3 मेजॉरिटी हमारी बनती है। अगर कोई और वज़ीर आज़म बनता है और कोई और इस पोजीशन पे आता है तो वो जारी वज़ीर आज़म होगा। किसी भी सूरत में एक जारी वज़ीर आज़म, एक जारी मैंडेट वाली हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी के मसाइल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना अपना नुक्ता नज़र पेश करना है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अदालतों से अब भी हम तवक्कुल रखे हैं कि जो हमारे केसेस अदालतों में जा रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अपना हक मिलेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। मुझे उम्मीद है उमर यूब साहब जो है ना इंशाअल्लाह आइंदा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। उमर यूब साहब। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जमीयत उलमाए इस्लाम के अपने आज मेज़बानान का, मौलाना साहब का, शीरानी साहब अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन सारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमेशा दिल खोल के हमारा इस्तकबाल किया है, खुशामदीद कहा है। मेरे मरहूम वालिद साहब और गौरियू खान साहब का और शीरानी साहब का बहुत दरीना साथ भी रहा है। असेंबली में इकट्ठे थे तो हमारा बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का और शीरानी साहब का निहायत एक एहतराम का रिश्ता है और हमेशा मेरे कायद इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मौलाना शीरानी साहब को हमेशा इज्जत देनी है और एहतराम के साथ इनके साथ डीलिंग करनी है। हम लोग मशकूर हैं कि इन्होंने दिल के दरवाजे खोले और आज भी हम लोग इकट्ठे क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग मुहिब वतन साथी हैं। हम लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और देते रहेंगे। इस वक्त सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि हमारी मईशत मजबूत हो और मईशत तब मजबूत होगी कि वज़ीर आज़म हाउस में एक मजबूत वज़ीर आज़म और एक मजबूत पार्टी का वज़ीर आज़म आए, ना कि 40 सीटों का रिग्ड इलेक्शन की बिसाखियों पे चलता हुआ एक वज़ीर आज़म आए जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसकी कोई सुने ना, वो फैसले नहीं कर सकेगा। लिहाजा ये वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान की अवाम को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत चाहिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दे सकती है। 180 सीटें हमारे पास हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि फिल फॉर उनके जरिए उनके जो फॉर्म 47 है वो फिल फॉर इशू होने चाहिए, क्योंकि फॉर्म 45 हमारे मौजूद है। आज भी आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 इस्लामाबाद सीटों पे स्टे दिया है और वो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जिस तरह के वो चीज़ें देख रहे हैं, धांधली उनको नजर आई। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया, मजीद और भी लोग जो हैं वो इंकशाफ कर रहे हैं और ये चीज़ें सामने आएंगी। और जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस वक्त बड़े बड़े सियासी पंडित कहते थे कि इनकी सीटें कहाँ से आई, पर रब्बुल इज़्ज़त पे हमारा पूरा भरोसा है। लोगों के दिलों में रब ने ये चीज़ डाली कि इमरान खान साहब के लिए वो वोट डालें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में मजीद लोग सामने आएंगे। रिजल्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में मजीद सामने आएंगे और हुकूमत मरकज में और चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। और यहाँ पे एक बार फिर मैं ये कहता चलूँ, चाहे वो MQM ने जो डाका मारा है कराची की और सिंध की सीटों पे, पेशावर की हमारी 7-8 सीटें हैं जिसपे तैमूर खान है, जिसपे हमारे कामरान बंगिश है, हमारे कासिम है, बहुत सारे और साथी हमारे, जानदाद खान है। हमारे यहाँ पे 3 सीटें इस्लामाबाद की सीटों पे डाका डाला गया है। 80 और सीटें हमारी जिन साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैरियट में हुई है, इन सारों के लिए हम लोग फाइट करेंगे। कानूनी रास्ता हमने इख्तियार किया हुआ है
हम लोग कानूनी चाराजोई इंशाल्लाह ताला मजीद करेंगे और ये सीटें रिकवर करेंगे। मेरी आखिर में एक बार फिर अपने जमीयत उलमा इस्लाम के साथियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने दिल के दरवाजे खोले और ये जस्तजू हमारी जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग एक मुस्तकिम, एक मजबूत पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जहाँ पे हमारी हुकूमत आते साथ ही हमारा पहला काम होगा कि अपने दिलों के राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब की बाजियाबी, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की, चौधरी परवेज इलाही साहब की, हमारी खवातीन जो अंदर पाबंद सलासल हैं उनकी बाजियाबी, हमारे जो मर्द लीडरान हैं उनकी बाजियाबी, और हमारे जो सिरों के ताज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी बाजियाबी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो अपने ख़ानदान के पास वापस आएँ। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका जो इस वक्त वो पाबंद सलासल हैं उनका सब जेल बनाया गया है, और जो उनके खिलाफ झूठे केस हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हमने खत्म करना है। बहुत शुक्रिया। उमर अयूब साहब, ये फरमाइए कि आप लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से असद कैसर साहब ने मुतालबा किया अदालती तहकीकात का, इल्जाम तो बराह रास्त उसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे लग रहा है कमिश्नर साहब की तरफ से, तो वो कैसे गैर जानबदाराना इंक्वायरी करूंगा कानूनी तौर पे। जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, बहुत एहतराम के साथ, जिस तरह कल भी हमने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज भी, कि क्योंकि रावलपिंडी के कमिश्नर ने उनका नाम लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो कानून का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है कि वो उस इंक्वायरी का हिस्सा ना बने और एक इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम बने। पर वो स्टेज 2 है, वो लॉन्ग टर्म में है। इमीडिएट टर्म में हमारा ये है कि हमारे जो साथी जिनके खिलाफ ये रिगिंग का शवाहिद सामने आए हैं, ये फिल फॉर फॉर्म 45 की बुनियाद पे नया फॉर्म 47 बने और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं पेंडोरा बक्स हम नहीं खोल रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस वक्त बड़ा सिंपल है, और वो सिंपल ये है कि फॉर्म 45 को उठा करके जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और वो पूरे पाकिस्तान में हमने पॉइंट आउट किए 80 सीट से, उनके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर करे। जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके मुताबिक वही हमें आवाम का आवाज़ है और वही हमें कबूल है। वो आप पहले हमारे रिजल्ट वापस डिक्लेयर करें, फिर जो लूजर कैंडिडेट होगा वो आगे जाए और जहां पार्टी बनना चाहता है वो जाए। सिंपल बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया है, अभी भी हम कहते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट ना करें, उसी के अंदाज से आप चलें। आपने इत्तेहाद की बात की, इत्तेहाद को कायम दायम रखें, लेकिन आपने एक बयान दिया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाब निशान छीना गया है वो आइन और कानून के मुताबिक है। उसके बाद शेख नवाज साहब का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि बानी चेयरमैन के कहने पर हमने शिरानी रूप से इंतखाब खत्म किया है। क्या ये आपकी मेहरबानियाँ है जो आप नुक्ते निकाल करके लोगों को दूरी कर पे लाते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि इस वक्त स्टेटस क्या है? इलेक्शन कमीशन में आपके कितने MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फॉर्म जमा करवा दिए? पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान की जरा डिटेल बताइएगा। देखिए, जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, MOU साइन हुआ है, और इसके मुताबिक जो हमारे सारे MNAs और MPAs है, चाहे वो सिंध में, चाहे वो KPK में, चाहे वो पंजाब में, वो हम फाइल करेंगे। वो फाइल करना होता है विद इन 3 डेज, हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है, लेकिन 16 तारीख की जो नोटिफिकेशन आई है उसकी 3 दिन के अंदर होता है। वो कल के दिन में जितने हमारे पास आए थे उस 16 के मुताबिक वो आज हमने जमा कराए। 50 MNA की पंजाब से बिलोंग करते हुए वो 50 MNA की आज हमने फर्स्ट गो में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। वो हमारे कैंडिडेट्स के लेटर भी CNIC और उनके एफिडेविट कानून के मुताबिक जो जमा कराने थे वो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। वो दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक इंशाल्लाह कल हम उनको देंगे और 2 दिन में ये प्रोसेस उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कंप्लीट हो जाएगा। की बात की थी सूबाई MPAs की भी आई हमारे पास, अब कल हम जमा करेंगे। मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि अभी हमने 50 MNAs की वो कर दी है। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि जो बुनियादी मकसद दिखाई देता है ना, वो ये दिखाई देता है कि जो इत्तेहाद होने जा रहा है, आज भी 2 जमातों के साथ हुआ, दोबारा मुलाकात हो रही है, रिजर्व सीट्स को बचाने का ये मकसद है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो तरजीही फहरिस्त जमा करवाई जाती है उसकी डेट खत्म हो चुकी है। आप लॉ को भी समझते हैं कि ये मामला चलेगा कैसे?
नहीं देखो, जो ये कहते हैं ना तरजीही बुनियाद के, लेट्स सपोज अगर कोई 10 बंदे 15 बंदे इलेक्ट हो गए थे, जिस तरह केपी में भी इसकी मिसालें हैं, 2018 में भी ऐसा हुआ, इसके पहले वाले, अगर हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और वो पार्टी या पहले इवन उस पार्टी की वजूद ही नहीं थी, या वो पार्टी पहले नहीं कोई जमा करा चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन जब पहले अपने अदाद शुमार देगा कि इस इलेक्शन में जितने लोग नोटिफाइड हो गए उसमें पार्टी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो जो पार्टी आपने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन की उसको स्ट्रेंथ से बाहर तो नहीं रखेगी। इलेक्शन कमीशन अगर कल नोटिफाई करेगी कि ये 266 सीट्स है, इसमें से पार्टी स्ट्रेंथ क्या है, तो जो इंडिपेंडेंट हम ज्वाइन करेंगे हमारे, वो उसके भी एक किसी पार्टी की स्ट्रेंथ में दिखाएंगे। तो जिस वक्त इलेक्शन कमीशन वो स्ट्रेंथ दिखाएगा, वो बताएगा ये पार्टी है, इसके हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो वो हमारे एमएनए जो रिजर्व सीट है वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है और जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो उसके बाद आता है। ये लीगल प्रोसेस है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमीशन किसी तरह से आपको देखो, इलेक्शन कमीशन हर बहाना ढूंढता रहा है हमसे, जिस तरीके से उन्होंने बल्ला छीन लिया, जिस तरीके से हमारे खिलाफ कंटेम केस वहां लेके गए, जिस तरीके से तोशाखाना का केस फाइल करवाया, जिस तरीके से तोशाखाना का ट्रायल चलवाया, तो वो तो हमें खदशा रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ और हम कहते हैं और मुतालबा करते हैं कि अब जब आवाम का मैंडेट उन्होंने देख लिया, अब तो ये अंदाजा करे कि देखिए इनफ इज इनफ। साहब फरमाइएगा, आपने देखें इस वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, आप कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, क्या आपकी कानूनी जो टीम है वो कमजोर है, क्या वजह है, ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखिए मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, मानते हैं आवाम ने आपको मैंडेट दिया और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इंतकाम भले का निशान छीना गया, लेकिन सर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब तक इधर उधर जाते रहेंगे? मुल्क इस वक्त आपको IMF की तरफ किस्तें वापस करनी है, मैशियत देखिए, ऐसा कब तक जारी रहेगा? देखिए, हम तो यही चाहते हैं और सेक्रेटरी जनरल साहब ने सही फरमाया कि हम आदमी इस्तेकाम को ख़त्म करने के लिए तो ही सारा स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट डाका डाला गया और मैंडेट हमारा लेके किसी और को दिया गया, उसके बावजूद हम कहते हैं हम पार्लियामान जा रहे हैं, उसके बावजूद हम कह रहे हैं जा रहे कि इंशाल्लाह ताला उमर अयूब खान साहब हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होंगे, इंशाल्लाह ताला इसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। मैं एक MNA की सिक्योरिटी की बात पे सवाल करना चाह रहा था कि जो आपके MNA लाजिस में हैं, बाकी हैं, उनकी सिक्योरिटी की क्या है? नहीं, इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी अल्लाह खैर करेगा और हम लोग डटे हुए हैं। उमर भाई ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੇਫਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कोई गल नहीं। ਹੈਲੋ